Hello guys, how are you? Everyone is fine. So today मैं ज़्यादा आज बात नहीं कर रहा हूँ. Today I'm going to start a new that is a topic, that is the main topic you can say after the prolonged discussion on chemical properties of halogens. Okay, so today our main discussion is that about electrophilic substitution reactions. So very important. Why it is electrophilic substitution reactions? Because generally when a benzene ring is attached by an chloroatom or a chlorine atom, it has been seen that it shows plus M effect, and due to that the incoming electrophile will come at ortho and para positions. So let us start. So यहाँ पे हम लोग को electrophilic substitution reactions है. तो यहाँ पे इस definitions को हम लोग कैसे वो करेंगे, तो ये डेफिनेशन हम लोग को बोलता है कि जनरली अगर दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है, दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस व्हिच इज कैरिड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल दैट इज ऑन पॉजिटिव चार्ज बेसिस, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब ई पॉजिटिव सपोज, ठीक है. सो व्हाट आर द इलेक्ट्रोफाइल्स विल बी जनरेटेड, विल सी. सो दो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच इज कैरिड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, जनरली इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो यहाँ पे क्या होंगे? A reaction in which one or more hydrogen atoms, a reaction in which one or more hydrogens of the benzene ring or any aromatic compound, a reaction in which one or more hydrogens of the benzene ring or any aromatic compound are replaced or substituted by an electrophile, then it will be called as electrophilic substitution reactions. मतलब substitute करना, ठीक है. So what are the electrophiles will be generated? So for that some particular reactions will be there, and that for the particular reactions are there. What are the reactions we will have to see? So first reaction comes, that is nitration reactions. Nitration reactions. Okay, so what about the nitration reactions? So nitration reaction means what we have to involve? We are generating electrophile, that is generations of electrophiles. बहुत important topic है ये, generation of electrophiles. So first I am seeing nitration reactions. So what is nitration reactions? So nitration reaction means generally deals with concentrate nitric acid, Kong nitric acid plus Kong sulfuric acid. तो यहाँ पे क्या ऑब्टेन होंगे, क्या इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेन होंगे यहाँ पे? So generally it is seen that nitronium ion will be involved as an electrophile. तो नाइट्रेशन रिएक्शन में क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है? इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन. ये चीज़ सिर्फ याद रखना. इसके साथ और भी बाय प्रोडक्ट्स है, वो हम लोग को अभी फोकस नहीं करना है, हम लोग को याद रखना भी नहीं है, ज़रूरत नहीं है. क्योंकि अगर क्वेश्चन नाइट्रेशन रिएक्शंस पूछा जाएगा तो सिर्फ तुमको यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होता है उस चीज़ को याद रखना है. ठीक है गाइस, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द बाय प्रोडक्ट्स हियर. ओके, सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा एक रिएक्शन देखते हैं, और भी रिएक्शन देखते हैं, जैसे व्हाट आर द सम रिएक्शंस. तो सम रिएक्शंस में आएंगे, 2 नंबर रिएक्शंस में आएंगे सपोज क्लोरीनेशन रिएक्शंस. तो यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्टेन करने वाले हैं? व्हाट विल जनरेट हियर? Will generate some electrophiles, not some electrophiles, will generate one electrophile in this case. So what are the particular reagents you have to take? So chlorine plus anhydrous, that means in absence of water. Okay, so chlorine plus anhydrous aluminum trichloride, it will form Cl positive plus AlCl4 negative. So what is the electrophile in this case? That is chlorine cation. So chlorine cation is what? It is an electrophile. So in this case you can see that this aluminum trichloride is called Lewis acid. Why it is called Lewis acid? Because it is an electron deficient molecule. So for that it will attack the chlorine atom. Okay, it will attack the chlorine atom, and here from this case you will see that the chlorine will be chlorine cation, and the aluminum will attack will be your, from AlCl3 it forms AlCl4 by having one negative charge. So this aluminum is what? This aluminum is now electron precise molecule, you can say. So similarly, but it have one negative charge because it is a period 3 element, so it can extend this covalency.
ओके, इट कैन एक्सटेंड इट्स कोवेलेंसी बियॉन्ड 3। सो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम एक प्रेसाइज मॉलिक्यूल है, पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे इस चीज़ को बस यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि अगर क्लोरीनेशन किया जाएंगे तो यहाँ पे क्या ऑप्टेन होंगे एज इलेक्ट्रोफाइल, क्लोरीन कैटायन, ये चीज़ याद रखना बस। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या आता है, ब्रोमिनेशन रिएक्शंस। ब्रोमिनेशन रिएक्शंस, सो व्हाट इज ब्रोमिनेशन रिएक्शंस, तो यहाँ पे क्या ऑप्टेन होंगे, यहाँ पे होंगे ब्रोमीन कैटायन। सो व्हाट विल बी द रिएजन यू हैव टू टेक, सो विद ब्रोमीन प्लस फेरिक ब्रोमाइड क्या ऑप्टेन होंगे, Br पॉजिटिव प्लस Fe Br4 नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे डोंट हैव टू रिमेंबर द बाय प्रोडक्ट्स, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल व्हिच इज अ नेगेटिव चार्ज वी आर गेटिंग, दैट डोंट हैव टू रिमेंबर। ठीक है, सिर्फ तुमको क्या याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे क्या ऑप्टेन कर रहे हैं हम लोग, ब्रोमीन कैटायन वी आर ऑप्टेनिंग। क्लियर? So these are the some electrophiles we are generating in case of chlorinations, in case of nitration, and in case of, we have seen that in case of brominations. So whatever some others, yes, some other reactions we have to study, that is for sulfonation and for Friedel-Crafts reactions. So suppose my fourth reaction is suppose Friedel-Crafts reaction. So Friedel-Crafts, we have two types of Friedel-Crafts reaction, that is Friedel-Crafts alkylation and the other is Friedel-Crafts acylation reaction. So Friedel-Crafts alkylation reactions. So what is Friedel-Crafts alkylation? So in Friedel-Crafts alkylations we will obtain what? We will obtain a alkyl cation. So let's see this reaction. So generally alkyl chloride, again we are taking anhydrous aluminum trichloride. Here you will obtain R positive plus AlCl4 negative. So this is called alkyl cation, which act as an electrophile. In the fifth reactions we will see for Friedel-Crafts acylation reactions. So Friedel-Crafts acylation reaction means RCl के जगह में एसाइल क्लोराइड ले लो, इसका नाम है एसाइल क्लोराइड प्लस anhydrous aluminum trichloride, it forms what? Acylium ion, that is RCO positive plus AlCl4 negative, इसको बोला जाता है acylium ion. So यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्टेन कर रहे हैं एज इलेक्ट्रोफाइल, which is an acylium ion, which will be called as an electrophile, and this electrophile will be participate in the electrophilic substitution reactions. That means in place of hydrogens and ortho and para position, it will be substituted by this electrophile. We'll go on this particular reactions. Okay, now the last reactions that is very important also, that is called sulfonation reactions. That is called sulfonation reactions. That is sixth number ना guys, yes, sixth number, that is called sulfonation reactions. इसके बाद यहाँ पे क्या होंगे, so sulfur trioxide plus concentrate sulfuric acid. ठीक है, so sulfur trioxide plus concentrate sulfuric acid, it forms sulfonic acid. It is SO3H positive, yes, sulfonic acid plus HSO4 negative. तो ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। बस यहाँ पे ये चीज़ को याद रखना। सल्फोनेशन स्पेलिंग आई थिंक थोड़ा गलती है, SULPHO, सॉरी, सल्फोनेशन, ठीक है, सल्फोनेशन SULPHO, सल्फोनेशन रिएक्शन, जिसमें SO3H पॉजिटिव will be generated as an electrophile, which will be act as an electrophile. Okay, so these are some particular reactions you have where we are generating some electrophiles in a particular reaction. So that reactions we have to remember, but simply नाम से ही तुम लोग को एक चीज याद रखना है, उसका है वो है electrophiles. तो अगर electrophiles याद है ये सब reactions का particularly, तो यहाँ पे कोई भी questions आ जाए तुम लोग आराम से कर सकते हो. So let's start the reactions by our haloarenes. So haloarenes हम लोग लेते हैं
इसके बाद हम लोग रिएक्शंस एक वन बाय वन चेक करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट रिएक्शंस हम लोग क्या देखेंगे, सपोज क्लोरीनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो क्लोरीनेशन रिएक्शन में सपोज हमने लिया क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ तुमको क्लोरोबेंजीन ही लेना है। तो मैंने सपोज क्या किया, मैंने एक क्लोरोबेंजीन लिया, ठीक है, और मैंने रिएक्शंस कराया क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड, क्लोरीन प्लस एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये रिएजन देख के तुमको याद रखना है कि ये क्या रिएक्शंस है, ये एक क्लोरीनेशन रिएक्शंस है, क्योंकि क्लोरीनेशन रिएक्शंस क्या बताता है हम लोग को, क्लोरीन प्लस एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो इससे क्या हम लोग प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन करेंगे हम लोग, क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे, सो हियर you will get two types of products. So what are the two products you will obtain here? What are the two products you will obtain here, and why it is so? Because this chlorobenzene has by, if you see the some resonating charges of this chlorobenzene, we are obtaining where, we are obtaining in this position, that is partially negative charge, no, due to some resonating structures. So that's why in this case what will happen, the incoming electrophile, that is Cl positive, because it is a chlorination reactions, so chlorine cation will be generated as an electrophile. So here already chlorine atom is here in this position. So based on this position, which is the ortho position and para positions, I have discussed in my last videos. So this is the ortho positions, this is the ortho positions, and this is the meta position, and this is the para position, diagonal. So यहाँ पे कहाँ पे आएंगे, एक तो होंगे यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, या फिर बोल सकते हो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो। सिमिलरली और एक प्रोडक्ट जो मिलेंगे वो कहाँ पे होंगे, यहाँ पे हम लोग को और एक प्रोडक्ट मिलेंगे जो क्या होंगे, एकदम डायगोनल टू द प्रीवियस क्लोरीन एटम, दैट इज व्हिच इज एग्जिस्टिंग क्लोरीन एटम। सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा, इस कंपाउंड का नाम क्या होंगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, एक साथ कोई गैप नहीं है। या फिर बोल सकते हो 1 2 3 4, दैट इज 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये हो गया पैरा प्रोडक्ट, ये हो गया ऑर्थो प्रोडक्ट। तभी इस दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोनों मेजर प्रोडक्ट मिलेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक मेजर होंगे एक होंगे माइनर। सो व्हिच वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, द मेजर प्रोडक्ट विल बी योर पैरा प्रोडक्ट, दैट इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन विल बी द major product and ortho dichlorobenzene will be the minor product. And from this what you can conclude, so generally why it is so, because you see that these two chloro atoms, for they are generally adjacent, they are generally remains at the adjacent carbon atom. So here the repulsions will be very greater, that means the inter electronic repulsions will be maximum in this case, but in this case these are remain in a diagonal, diagonally they are existing. So here no such repulsions will be happen. Yeah, it all the carbon having one on hydrogen atom, since it contains what, it is also one hydrogen atoms. See hydrogen atoms for hydrogen for remaining अगर हाइड्रोजन एटम्स होते हैं तो उसमें जनरली रिपल्शंस बहुत मिनिमल होते हैं, उसको हम लोग नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द क्लोरीन, इट इज अ वेरी बिगर मॉलिक्यूल. So for that, if it is remains in a very close proximity, then it will have some repulsions due to some bigger groups. So here this product will be very less. That means the product will be very less stable, you can say, because here the repulsion is maximum. So that's why it is a minor product and it has no such repulsions because they are remains diagonally. So here no such repulsions will be arised. मतलब ये क्या है, ये एक मेजर प्रोडक्ट है। मतलब जितना भी पैरा प्रोडक्ट होंगे for the chlorobenzenes कोई भी रिएक्शंस में जनरली इट विल बी कॉल्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। ये चीज़ याद रखना तुम लोग, ठीक है गाइस। सो नेक्स्ट रिएक्शंस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शंस क्या देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट रिएक्शन से हम लोग का है क्लोरोबेंजीन लिया फिर से मैंने, और मैं यहाँ पे क्या रिएक्शन देखना चाहता हूँ, तो मेरा रिएक्शंस होंगे यहाँ पे, सॉरी गाइस।
नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ब्रोमिनेशन रिएक्शन देखेंगे। सो ब्रोमिनेशन रिएक्शन में क्या देखेंगे, सॉरी सो ब्रोमिनेशन रिएक्शन में क्या देखेंगे हम लोग जनरली, सो ब्रोमीन प्लस फेरिक ब्रोमाइड, दैट इज कॉल्ड ब्रोमिनेशन रिएक्शंस। ब्रोमिनेशन रिएक्शंस तो क्या होंगे यहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे इजीली हम लोग प्रोडक्ट लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो विल गेट टू प्रोडक्ट्स, दैट इज one is the para product, one is the major product, and another one will be the minor product. So this is the minor product and this is major product, that is para product, para dibromobenzene, okay, will be the major product. तो देखो क्वेश्चन में तुम लोग को पूछा जा सकता है what is bromination reactions या bromination reactions, how the reactions will be occur, explain how the haloarenes react, haloarenes will be treated, will undergo reactions with suppose bear to in presence of ferric bromide। तो ये चीज तुमको दिमाग में रखना है, ये क्या बोल रहा है, ये लोग ब्रोमिनेशंस के बारे में पूछ रहा है। तो सिंपल वहां से क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो चीज याद रखना, बस हो गया, प्रोडक्ट जो आएंगे वही होगा, बस वो चीज को याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे भी आ सकता है, घुमा के आ सकता है क्वेश्चंस, ठीक है, जस्ट उस चीज को याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है नाइट्रेशन सपोज। ठीक है, मैं नाइट्रेशन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्लोरोबेंजीन लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नाइट्रेशन करूँगा। नाइट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड और क्या है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, concentrate nitric acid and concentrate sulfuric acid। ठीक है, so concentrate nitric acid and concentrate sulfuric acid, generally it will be called as nitration reactions। तो यहाँ पे क्या होंगे, so here what are the electrophile will be generated here, so in this case NO2 positive, that is called nitronium ion। so यहाँ पे कहाँ आएंगे nitronium ion, so here adjacent to chloro the nitro group will come, that is nitronium ion will be generated, that is called nitro group। Here one more product will be occur, that is called para, that is para nitrochlorobenzene। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, जनरली इट इज नोन एज पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अल्फाबेटिकली ऑर्डर आगे जाते हो तो सी आगे आएंगे, सो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और यहाँ पे ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट होंगे, ये जो पैरा प्रोडक्ट है, ये पैरा प्रोडक्ट क्या होंगे, ये पैरा प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, अराउंड 98% मिलेंगे और ये मिलेंगे सिर्फ 2% में। क्यों है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर ऑर्थो पोजिशन में होंगे, ठीक है, अगर ऑर्थो पोजिशन में सब्स्टिट्यूशंस होंगे तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा रिपल्शंस होंगे ड्यू टू इट्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी। तो ड्यू टू इट्स रिपल्शंस द मोलिक्यूल बिकम अनस्टेबल, तो यहाँ पे जनरली क्या मिलेंगे हम लोग को, माइनर प्रोडक्ट हम लोग को ऑब्टेंड होंगे। बट इन दिस केस दे आर रिपल्शंस वेरी वेरी मिनिमल। ठीक है, रिपल्शंस नहीं है बोल सकते हो, अप्रोक्सीमेटली टू 0 बोल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग को एक मेजर प्रोडक्ट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे हम लोग ने ये रिएक्शंस को देखा। सिमिलरली अगर हम लोग और भी रिएक्शन देखते हैं, और भी रिएक्शंस में क्या क्या था हम लोग का, फ्रीडल कप एल्काइलेशंस सपोज। तो फ्रीडल कप एल्काइलेशन में क्या होता है, जनरली विल जनरेट RCO, एसाइलेशंस में RCO पॉजिटिव और एल्काइलेशन में क्या होता है R पॉजिटिव जनरेट होते हैं। सो इट इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसमें क्या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है RCO पॉजिटिव, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में we generate what, the generation of electrophile will be एसाइलियम आयन। और अगर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है तो जनरली क्या जनरेट होंगे, R पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड एल्काइल कैटायन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होंगे, सो आई एम राइटिंग ओनली द मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस। सो जनरली यहाँ पे क्या होंगे,
आर सॉरी COR, ठीक है। तो बोल सकते हैं यहाँ पे अगर फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं तो जनरली हम लोग क्या मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन भी बोल सकते हैं। सो 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन बोल सकते हैं इस कंपाउंड का नाम, ठीक है, एज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये पैरा प्रोडक्ट है और ये पैरा प्रोडक्ट क्या देते हैं, जनरली मेजर प्रोडक्ट देंगे। तो सिर्फ मैं मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। अगर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन करते हो तो जनरली यू विल गेट व्हाट, सो 6Cl and 1R। सो इसका नाम क्या होंगे जनरली, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन करते हैं तो जनरली हम लोग इसको क्या बोलेंगे, जनरली अगर R के जगह में मैंने CH3 लिया तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे ये पैरा क्लोरोटोल्यून है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो पैरा क्लोरोटोल्यून बोल सकते हो। और एक नाम है यहाँ पे और भी कुछ बोल सकते हो, यहाँ पे 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हो, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरा क्लोरोटोल्यून भी बोलते हैं। दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट अगेन, व्हाई, बिकॉज द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज कम एट पैरा पोजिशन, सो दैट्स व्हाई इट इज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, बट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं सो जनरली अगर तुम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिख के आते हो तब मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट वन मोर स्ट्रक्चर फॉर दिस, दैट इज अवर व्हाट, ऑर्थो प्रोडक्ट आल्सो यू हैव टू राइट, ओके, बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को देख के इसके बाद ही आंसर करना। नेक्स्ट जो लास्ट है हम लोग का रिएक्शंस, दैट इज कॉल्ड सल्फोनेशन रिएक्शंस, ठीक है। सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या देखेंगे हम लोग, तो सल्फोनेशन रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि क्लोरोबेंजीन कैसे रिएक्शंस करता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी, सो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, प्लस सॉरी इन एरो दिया, एरो के ऊपर मैं क्या लिखूंगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे क्या जनरेट होंगे, इट विल जनरेट व्हाट, सो सल्फोनेशन रिएक्शन में क्या जनरेट होते हैं जनरली, तो जनरली in presence of sulfur trioxide, so here you will obtain chlorobenzene and in the para positions sulfonic acids will come, that is SO3H। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होंगे, इस कंपाउंड का नाम है 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो इस कंपाउंड का नाम है 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी सल्फोनिक एसिड जो है SO3H पॉजिटिव जो था इलेक्ट्रोफाइल, वो कहाँ पे आया, इस कार्बन पे आया, बाय रिप्लेसिंग और बाय सब्स्टिट्यूटिंग बोल सकते हो, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द हाइड्रोजन, क्या आया, SO3H आया। तो जनरली एक इलेक्ट्रोफाइल है एट पैरा पोजिशंस, मतलब ये क्या है, एक मेजर प्रोडक्ट है। और माइनर प्रोडक्ट कहाँ पे आएंगे, SO3H in this position, that is SO3H at ortho position, that is adjacent to the chlorine atom, next position to the chlorine atom। तो जनरली यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने रिएक्शंस देखा और साथ ही साथ हम लोग ने ये चीज़ भी देखा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होते हैं और कौन सा प्रोडक्ट माइनर होते हैं। सो गाइस आई होप सो दैट माय कंटेंट विल हेल्प यू। मुझे लगता है कि तुम लोग को ये कंटेंट तुम लोग को बहुत हेल्प करेगा इन योर preparations, and whatever possible from my side I will help you। and after the completion of this chapter I think in the coming week you will get an PDF file also। साथ ही साथ नेक्स्ट वीक तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, हम लोग नेक्स्ट यूनिट में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एज वेल एज विल अगेन कम टू द फर्स्ट पार्ट, साइड बाय साइड चलते रहेंगे, ठीक है गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ लव and keep sharing, and always whatever possible from you guys, if possible then impart education to others also in a free of cost if possible, okay। So yes, this is the way we can deal with it now, the situation is very worse, okay। So thank you so much, अच्छे से रहो, keep studying, be positive, and God bless you all, thank you।